بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء مرسلین و علی آلہ اصحابین اجمعین۔ حمد و صلات کے بعد آج حضور کے رخسار نور کا تذکرہ آپ کے سامنے میں رکھنی چاہتی ہوں۔ حضرت ہند بنت ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہل الخدین، حضور علیہ السلام کے مبارک رخسار ٹھیک نا نرم اور کم گوشت تھے۔ ٹھیک، امام صالحی رحمہ نے بیان کی ہے۔ سہل کی تعریف یہی کی ہے قلیل الرحم رقیق الجین، ٹھیک نا، جس پہ گوشت بہت زیادہ نہ ہو اور جلد جس کی باریک ہو، ٹھیک نا، یہ حضور کا رخسار کا حسن ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے مطلب اللہ کے نبی کے رخسار کا ذکر کرتے ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الخط، ٹھیک نا، حضور کے رخسار سفید تھے۔ اور حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہی لفظ ہے، منقول ہے کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الخدین، حضور کے رخسار سفید تھے، اللہ کے نبی کے سفید تھے مطلب کلر۔ ابو صافہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور اپنی خالہ کے گھر رہا کرتے تھے۔ ایک دن وہ حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کے گھر میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کے ہو کے رہ گئے۔ پھر بکریوں کی طرف دھیان کم ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ تو اس کے بعد ان کے خالہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ابو قصافہ کو منع کیا کہ تم ان کے پاس ملنے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ واقعہ طویل ہے، پھر وہ رہ نہ سکیں اور ان کی محبت سے مجبور ہو کر کے ان کو بھی حضور کی زیارت کے لیے آنا پڑا۔ ابو قصافہ نے کہا مجھے روک دینا، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ایک بار تم بھی دیکھ لو، پھر تم کہو گے تو میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک نا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو ابو قصافہ اپنی والدہ اور اپنے خالہ کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس لے کے گئے۔ تو اللہ کے نبی کی زیارت کے بعد جب وہ واپس پلٹے تو ابو قصافہ کی آرزو یہ تھی کہ اب میں دیکھوں کہ میری ماں اور میری خالہ کا اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کوئی کہیں کسی کو لے کے جائے تو اس کی آرزو ہو کہ یہ شخص میرے شیخ کا، میرے استاد کا، میرے مطلب وہ گرویدہ ہو جائے اور اسے یقین ہو کہ یہ میرا قائل اور میرا لیڈر، میرا رہنما، میرا عادی اتنا دل آویز ہے کہ یہ اس کے سحر سے بچ نہیں پائے گا۔ تو جب وہ کوئی ایسے شوق سے کوئی لے کے جاتا ہے تو پھر وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو لے کے گیا وہ اسے دیکھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کہ اس کی کیا تاثرات ہیں۔ لیکن ابو قصافہ اپنی ماں اور اپنی خالہ کو دیکھ رہے تھے کہ حضور مطلب اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ تو ان کی ماں نے اور ان کے خالہ نے واپس چلتے ہوئے لفظ کیا کہے وہ سنیے، اللہ کے نبی پہ درود پڑھیے۔ تو ابو قصافہ نے پوچھا کہ بتائیے پھر تو اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اس شخص جیسا زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں، اس شخص جیسا زندگی میں کبھی دیکھا نہ، احسن وجہن، ہم نے اتنا سوڑا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا، ولا انقا سو، اور جتنا پاکیزہ لباس
जितना पाकीज़ा लिबास इसने पहना है, हमने किसी का इतना साफ सुथरा लिबास नहीं, किसी का नहीं देखा। वला अल यानी कलानू, जितनी मीठी इसकी गुफ्तगू है, और किसी की मीठी इतनी गुफ्तगू नहीं सुनी। और अगले लफ्ज़ जो अगले उनके खाला ने कहा है, अबू कुरसा के खाला ने माँ ने कहा, वो क्या बोल रही हैं कि कहा कि अबू कुरसाफा क्या बताए कि जब वो बोलता था उसके मुंह से नूर निकलता था। अल्लाहू अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मैंने किसी चीज़ को भी मतलब अल्लाह के नबी से ज़्यादा इतना हुस्न में नहीं देखा। मैंने किसी चीज़ को हुजूर से ज़्यादा सोना मतलब नहीं देखा, मतलब उससे बेहतर नहीं देखा, अल्लाह के नबी से बेहतर किसी को नहीं देखा। सूरज ऐसे था जैसे कि अल्लाह के नबी के रुखसार में चलता हो, इस तरह अल्लाह के नबी का चेहरे में सूरज ऐसे गर्दिश करता था। ये अल्लाह के नबी का चेहरा था, ये अल्लाह के नबी का रुख अनवर था। ये नहीं कहा कि मैंने हुजूर मतलब अल्लाह के नबी जैसा कोई इंसान नहीं देखा, कोई ऐसा सैर नहीं देखा। आला हज़रत भी बोलते कि ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी जैसा कोई इंसान नहीं देखा, मैंने अल्लाह के नबी जैसा कोई सैर भी नहीं देखा। आला हज़रत भी मतलब बोलते हैं कि मतलब बोले कि कुर्बीन में सर्वे जाफ़िखा, ये भी नहीं वो भी नहीं, कुर्सीद था किस ज़ोर पर, क्या भड़ के चमका कमल, बेपर्दा जब रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो अल्लाह के नबी का हुस्न हर इसमें गहरा रहा, और अल्लाह के नबी का चेहरा चमकदार था, रोशन था। हज़रत बिन क़ाब बिन मालिम रिवायत करते हैं, क़ाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के नबी मुस्कुराते तो उनके चेहरे से नूर निकलता था कि जैसे कोई चांद का टुकड़ा है, ठीक ना। अल्लाहू अकबर। हज़रत बिन बरा बिन आज़िम रज़ी अल्लाह अन्हा एक सहाबी हैं, ज़रा इनसे भी मतलब सुन लीजिए कि ये अल्लाह के नबी के हुस्न के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कि काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब अल्लाह के नबी कायनात में हर शख्स से ज़्यादा मतलब अच्छे भी थे, सोड़े भी थे और खुल्क वाले भी थे, मतलब सबसे बेहतरीन थे। जैसे किसी के जैसे सूरत भी नहीं थी और ना उनके जैसी सीरत भी किसी की नहीं थी, और ना कभी ऐसा होगा। उनकी सूरत भी लाजवाब थी, उनकी सीरत भी लाजवाब थी, ठीक ना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा की खातिमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग चमकदार था। अजहर ऐसे रंग को कहते हैं जो वो सफ़ेद रंग जिस रंग में सुर्खी की आवेज़श हो, ठीक ना। एकदम चूने की तरह हुजूर का रंग सफ़ेद नहीं, जो चूने की तरह सफ़ेद जो होता है ना, उसमें कोई कशिश नहीं होती है। जो गंदबी रंग होता है ना, उसके अंदर भी स्याही का गलवा होता है। हुजूर का रंग अज़हर था, इसका माना चमकदार भी है। उलमा इनके माने भी बताए हैं कि वो सफ़ेद जिसमें सुर्खी की आवेज़श, ठीक ना। सुर्ख और सफ़ेद रंग था अल्लाह के नबी का, और जो अल्लाह के नबी को देखता है, जो देखता ही चला जाता। जिन्होंने अल्लाह के नबी को देखा, चेहरा या अनवर को देखा, बयान किया। अब जैसे अल्लाह के नबी के जो चेहरा को देखते हैं, अबियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जैसे कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह के बारे में भी गुजरी है रिवायत। अभी ये दल खद्दैन के लफ्ज़ है, उन्होंने अबियत इस माना में गुजरे हैं कि सफ़ेदी का गलवा था, ठीक ना। तो बाकी हुजूर का रंग अज़हर था, चमकदार था, और उसमें सफ़ेदी के साथ आवेज़श थी, सुर्खी थी। सुर्खी और सफ़ेदी का इम्तिज़ाज था अल्लाह के नबी का। और अल्लाह के नबी उसी चेहरा नूर का ज़िक्र हज़रत अम्मार इब्ने यासर के पोते ने हज़रत बिन रबी बिनते मुअज़्ज़र से पूछा, कहा कि तुमने अल्लाह के नबी की देखा है? तो उन्होंने कहा कि हमें बताओ कि कैसे हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो ज़रा सुनिए। वो कहते हैं,
अगर तू हुजूर को देख लेता तो बेसाख्ता पुकार होता कि सूरज चढ़ा हुआ। ऐसे हुजूर का चेहरा था। और हज़रत जाबिर बिन सामर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 14वीं की रात थी और चांद पूरी आबो ताक पर चमक रहा था। हुजूर लाल धारी एमनी धार मतलब चादर अपने लेटे हुए थे। मैं कभी हुजूर के चेहरे को देखता, कभी मैं आसमान के चांद को देखता। फिर मैंने फैसला किया उन्होंने मैं चांद नहीं हूँ, मैं हुजूर सो रहे हैं। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हमारी अम्मा वो फरमाती है कि कुन्तु अक़ीतो फसक़त मिन्नी इब्रा, मैं कुछ सी रही थी कि मेरे हाथ से सुई गिर गया। फतबलोहा अलैहा, मैं उसको तलाश किया लेकिन मुझे वो नहीं मिली, कि हुजूर के जो घर में दिया था उसमें डालने के लिए तेल भी नहीं थे। मालिक कोलैन है, वो अपने पास कुछ रखते नहीं, 2 जहाँ के नेमते उनके खाली हाथ थे। तो कहा कि मैंने ढूंढा, सुई नहीं मिली, ठीक ना, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो उतने में हुजूर तशरीफ़ मतलब अल्लाह के नबी तशरीफ़ लेके चले आए। तो अल्लाह के नबी आए तो फिर मतलब उनके चेहरे से इतनी रोशनी निकली कि मैं गुमी हुई सुई को तलाश कर लिया, ठीक ना, मुझे सुई मिल गई। तो सोजने गुमशुदा मिलती तबस्सुम से तेरे, गुमी हुई सुई को अगर तलाश करना तो अल्लाह के नबी आ गए। तो हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैं अल्लाह के नबी को लेके गई ना अपने घर में, तो मेरे घर में चिरागा हो गया, रोशनी फैल गई। और काजी सनाउल्लाह मतलब उसमें लिखे हैं कि महल्ले की औरत बाकायदा हज़रत हलीमा सादिया के पास आई कि हलीमा तू इतनी अमीर हो गई है, रात में बड़े बड़े चिराग बुझा के सोते, तेरे घर में रात को भी रोशनी निकल रही है, तू इतनी अमीर हो गई, तू तो बड़ी कमज़ोर थी, बड़ी मारी थी, तू रात को भी चिरागा नहीं बुझाती। तो हज़रत हलीमा सादिया ने कहा कि और मैं तुझे बताऊं कि मेरे घर में कौन सा चिराग जलता है। तो अल्लाह के नबी पालने में थे और वो औरतों को बाजू से पकड़ा और हलीमा सादिया लेके आई पास में, अल्लाह के नबी के पास झूलों में पड़ा। उनको अल्लाह के नबी को पालने में थे तो अल्लाह के नबी के पास खड़े होके कहा, ठीक ना, जब से ये प्यारा हमारे घर में, हमने सारे दिए तोड़ दिए, ना दिए की ज़रूरत है ना मसल की हारत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार से मतलब पूरा अर्श रोशन हो जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से वो उजाले, वो घूमी हुई सैयदा आयशा अम्मा हमारी उम्मत मोमिनीन जामे बिन सद्दाद हज़रत तारिक बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा, उनसे रिवायत है कि ये दिल आवेज़ रिवायत है, ठीक ना, आप सुनिएगा तो आपको ठंड पड़ेगी। एक अल्लाह के नबी एक दिन मतलब सैर करते टहल रहे थे बाहर में, एक वहाँ एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ था और उनके एक ऊँट वहाँ पे चल रहे थे। एक सुर्ख रंग का ऊँट अल्लाह के नबी को पसंद आ गया। काफिले वालों से कहा बेचते हो? उन्होंने कहा जी बेचते हैं हम। उन्होंने कहा जी बेचते हैं, हाँ इतने का सौदा मतलब तय हो गया। तो अल्लाह के नबी फरमाया कि मैं ताजिर से आया था, मैं तो सैर के लिए आया हूँ यहाँ, तो तुम्हारा ऊँट मुझे पसंद आ गया तो मैं इसका ख़रीदार बन गया, मैं अपने शहर में जाके इसकी कीमत तुम्हें भेज दूँगा। ऊँट पकड़े और सुर मदीना चले गए। जब तक अल्लाह के नबी दिखाई देते रहे वो अल्लाह के नबी को देखते रहे। जब नज़रों से ओझल हो गए तो दिल पे हाथ रख के खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद जब सकते से बाहर आए तो एक दूसरे से पूछने लगी कि यार एक शख्स आया था और ऊँट उधार ले गया है और तुम्हें अपना पता भी नहीं बताया है। तुम सब की अकल के पर्दा पे पड़ गया कि तुमने उसका पता ही नहीं पूछा। जब किसी को नक्द सौदा दिया जाता तो उसका आता पता नहीं पूछा जाता। अगर उधार दिया जाता है तो या आप उसे जानते हो या आपके दरमियान में कोई जानने पहचाने वाला या कुछ गिरवी रख के दे दिया जाए, ठीक ना। तो अल्लाह के नबी ने मतलब वो एक शख्स आए और तुमने उसका पता भी नहीं पूछा, ना उसका कोई इल्ज़ामी दिया, ना कोई तुम में से उसका कोई जानता है। यहाँ सब की अकल पे पर्दा आ गया।
किसी ने उसका पर्दा पूछ लिया होता तो एक बोला कि जब वो बात करता था तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे। अल्लाहू अकबर। जब वो मुस्कुराते थे तो सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था। एक कहने लगा कि जब मैं उसकी आंखें ही देखते रह गए, क्या खूब सजन दी अखियां ने जिनमें पालकी सुराइयां रखियां, तुझे मेरे यार ने गीठा जिनमें देख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे निकले सर करनू सारे गुलशन शीश नवावे। कहा जो भी हुआ तुम उसके हुस्न में खो गए, उसके हुस्न में खो गए, और वो अपने हुस्न का जादू जगा के वो कीमती हो ऊँट हथिया के ले गया। जब उन्होंने ये बात कही तो इमाम हुजर क़ानी लिखते हैं कि अब तक खामोश बैठी काफिलों की सरदार की बीवी ने पर्दा सरकाया और उनसे मुखातिब होके कहा, ठीक ना, वो बोलने लगी, कहा खबरदार जो उसके खिलाफ कोई बात की, अल्लाह की कसम मैंने ऐसा शख्स देखा है कि जिसका चेहरा चांद का टुकड़ा है, ठीक ना, वल्लाही कदर गैर, वो मतलब बोलने लगी उसमें, खबरदार जो उसके खिलाफ कोई बात की, उसकी ज़मानत मैं देती हूँ, अगर वो कीमत देने नहीं आया तो मुझसे वसूल कर लेना। उन्होंने कहा कि अच्छा तू उसे जानती है? तो कहे कि हाँ वल्लाह मैं भी उससे नहीं जानती। तो फिर ज़मानत किस बात की ले रही है? कि जब तुम सौदा कर रहे थे मैंने खैमे की ओर से उसका चेहरा देखा था, और जिसका चेहरा इतना अच्छा हो वो झूठ कभी बोल ही नहीं सकता। कुछ देर गुजरी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब एक शख्स आया जिसने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिब हूँ और अल्लाह के नबी ने तो तुम्हारे जानिब मुझे भेजा है, और ये लो खजूरें, इनसे अपनी कीमत पूरी कर लो, और ये खजूरें अल्लाह के नबी ने तुम्हारे ज़ियाफ़त के लिए भेजा है। तो उन्होंने कहा कि कीमत तो हम लेंगे, लेकिन बताओ कि वो प्यारा रहता कहाँ है? उन्होंने कहा कि वही ये खजूर के जो झुंड दिखाई देते हैं ना, ये उसका ये महबूब का डेरा है। इमाम ज़ुल्क़ादिर लिखते हैं कि सारा काफ़िला उठा और अल्लाह के नबी के कदमों में जाके बैठ गया। तेरी तख्त के अलावा मैं मुरीद हो गया। सब ने इस्लाम की दौलत हासिल कर ली, ईमान आ गया। अल्लाह के नबी का चेहरा ही इतना खूबसूरत है, जो देखता तो फिर देखता ही रह जाता। इकबाल भी कहते हैं अल्लाह के नबी का चेहरा ही इतना खूस था कि मतलब इतना हुस्न था कि जो देखता देखता ही रहता। इकबाल भी कहते हैं सस जेहतन रेहातब सस जेहतन रेहातावे तू इबिन तुर के ताजी को अरब हिंदुए को। अल्लाह के नबी ये 6 सीरतें आपकी चमक से थी, ठीक ना। ये तुर्क भी आपके ग़ुलाम है, आपके ताजिर भी ये ग़ुलाम है, ये अरब भी आपके ग़ुलाम है। पूरी कायनात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का दम मतलब भरती है, और वो चेहरा अनबर रोशनी बांटते हैं, उजाले देते हैं। आला हज़रत ने क्या खूब कहा, जिनके आगे चिरागे कमर उन अज़ारों की तलत पे लाखों सलाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बीनी, ठीक ना, नाक मुबारक के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि क़ाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दक़ीक़ल अलरैन, मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नाक बीनी बारीक थी और तारास थी। और हज़रत हिंद बिंद अभी हाला रज़ी अल्लाह अन्हा इसी मज़मून को बयान करने के लिए लफ्ज़ ये इस्तेमाल करते हैं, क़ाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्लन अरनैन, मतलब लहू रूनैन। इसका मैं तर्जुमा करती हूँ। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी मुबारक बीनी मतलब तारास थी, उस पे एक एक नूर रहता था, अल्लाहू अकबर, और वो नूर छाया रहता था और उससे उसकी दाराजी और ज़्यादा महसूस होती। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चश्माने अनवर के बारे में, अल्लाहू अकबर, अल्लाह के नबी की मुबारक आँख में चश्माने नूर, उसके बारे में हज़रत
अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद अज़ल्लैन, मतलब हुजूर की आंखें, अल्लाह के नबी की आंखें, ठीक ना, ऐसी आंखों को कहते हैं अद अजल, जो खुशादा हो, जिसमें स्याह तारी सख्त स्याह हो, ठीक ना, और सफ़ेद जगह पर सुर्ख रंग के गहरे हो, उस आँख के अरबी में अद अजा कहते हैं। वो कहते हैं उस आँख को अरबी में अद अज कहते हैं। तो हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं काना अद अजलैन, मतलब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं कि काना अद हवा असहाफिन, हुजूर की आँखों की पलकें लंबी थी, और पलकों का लंबा होना ये हुस्न है। उनमें मोहब्बत ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुलिया बयान किया, जो आँख पर एक जुमला कहा, ठीक ना, उसको हम हिंदी में आपको तर्जुमा करके बताते हैं। अल्लाह के नबी की पलकें दाराज थी, ठीक ना, हुजूर की चश्मे अनवर की इंतहा की स्याह थी, वो पुतलियाँ बिल्कुल स्याह थी। और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि काना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्कल ऐनैन, मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें अस्कल थी, और अस्कल उन्हीं आँखों को कहते हैं जिनके सफ़ेद जगह पर सुर्ख रंग के डोरे हों, ठीक ना। हज़रत बिन जाबिर बिन समर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उन तो इज़ाना, ठीक ना, मैं जब भी अल्लाह के नबी को देखता, मतलब तो मैं कहता अभी सुरमा लगा के आए हैं, मतलब अल्लाह के नबी अभी सुरमा लगा के आए हैं, हालांकि उन्होंने सुरमा नहीं लगाया होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में कुदरती सुरमा लगा हुआ था, सरमरी आँखें थी उनकी। वैसे अल्लाह के नबी आँखों में सुरमा लगाते थे, लेकिन सोते हुए वो लगाते थे, मतलब असमत सुरमे की 3-3 सलाइयाँ दोनों आँखों में डालते थे, और वो सोते हुए रात में डालते थे, और सेहरी के बाद इतना रोते थे कि वो सारा सुरमा आँखों से बह जाता था। याद खुदा में अल्लाहू अकबर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों के बारे में एक लफ्ज़ ये भी है कि अब हरूर नैन, मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें दरिया थी, जिसका दरिया बहता जिस तरह उसी तरह अल्लाह के नबी की आंखें बहती थी, और कसरत के साथ रोने वाले थे याद इलाही में और उम्मत के गम में। तो अल्लाह के नबी की वो अब हूर भी थी, अल्लाह के नबी की आंखें अस्कल भी थी, अल्लाह के नबी की अद अज भी थी, और अल्लाह के नबी की आँखों में जो अल्लाह के नबी की आँख थी, वो अल्लाह के नबी की जो पलकी थी, उसके मतलब अहदब के लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अकहल का लफ्ज़ मतलब अल्लाह के नबी का हुआ है, उनकी आँखें सरमरी थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं काना सिब्यानु युस्बहना, ठीक ना, इसका हम तर्जुमा करते हैं आपको। बच्चे जब सोते हैं तो सो के उठते हैं तो उनकी आँखों के अंदर मैल होता है, ठीक ना, जिनको माएँ उठ के साफ़ करती हैं, जिनको अमूमन माएँ साफ़ करती हैं। तो लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब सो के उठते थे तो अल्लाह के नबी के बालों को तेल लगा हुआ होता था, और अल्लाह के नबी का आँखों में सुरमा लगा हुआ होता था। ये अल्लाह ने अपने नबी को जमाल दिए थे। हज़रत हलीमा साद बिन उनके आँखों का जिक्र करती हैं अल्लाह के नबी का कि जब मैं उनको लेने के लिए आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सोए हुए थे, तो सब्ज़ रंग के कपड़े में लिपटे हुए थे, मैंने अपने हाथ उनके सीने पे रख दिया, और उस वक्त अल्लाह के नबी की आंखें बंद थी। तो मैं आई तो अल्लाह के नबी की सीने पे हाथ रख दिया। ये खुश वक्त खातून है जिसने अल्लाह के नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर में रख के वो सब चीज़ समेटी कि आज कायनात की सारी दाइयों की इमाम है, मतलब हलीमा। वो सारे सहराओं में घूम लेती, जब उसे भूख लगता था लबों को चूम लेती थी। अजब तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। ये एजाज़ मिला उनको। जब मैं अल्लाह के नबी को ले जाती तो इस तरह मतलब फरमाई
कि सब रंग का कपड़ा था, सब्ज रंग का। तो मैं अल्लाह के नबी को सीने मुबारक पे हाथ रख दी और फिर फताबन दाहिबन, मतलब मेरा हाथ आया तो अल्लाह के नबी के लबों पे तबस्सुम फैल गया, ठीक ना। और मैंने देखा कि अल्लाह के नबी अपने आंखें खोली। तो हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब वो आंखें खोली तो मुझे देखने लगे तो हुजूर की आंखों से रोशनी निकलने लगी जो आसमान तक चली गई। ये अल्लाह की आंखें हैं, अल्लाह के नबी की आंखें हैं, चश्माए अनवर है अल्लाह के नबी की आंखें की, ठीक ना। आंखों के बारे में बता रही हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर बिन हज़रत अता अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत बिन उमैद बिन उमर, ये तीनों सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए, हाजिर हुए और हाजिर होके कहने लगे हदीसनी, ठीक ना। इसका तर्जुमा मैं कर देती हूँ। इन तीनों ने जाके उम्मत मोमिनीन से कहा कि मुझे अल्लाह के नबी की कोई अजीब बात सुनाइए। सहाबा के पास ताबईन जाया करते थे, वो सहाबा जो अल्लाह के नबी के करीब रहे हो उनके पास दीगर सहाबा जाया करते थे, तो उनसे पूछा करते थे कि मतलब हुजूर की कोई बात सुनाओ, अल्लाह के नबी की कोई बात सुनाओ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत बिन अता रज़ी अल्लाह अन्हा, ये तीनों हज़रत आयशा के पास, उम्मत मोमिनीन के पास गए, अल्लाह के नबी की कोई अजीब बात सुनाओ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह का हर मामला अजीब था। तो और फिर फरमाया कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, मेरे घर, और मेरे बारी का दिन था, और अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा मुझे रब की इबादत के लिए तो इजाज़त न देती। तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं कौन हूँ, आप अल्लाह की इबादत कीजिए। तो अल्लाह के नबी कहने लगे मुसल्ले पे तशरीफ़ मतलब लाएं, ठीक ना। वहाँ पे गए, फिर हुजूर रोए, अल्लाह के नबी रोए, ठीक ना। अल्लाह के नबी इतना रोए कि उनका दामन भीग गया, ठीक ना। अल्लाहू अकबर। फिर अल्लाह के नबी रोए, हत्ता तक एकदम उनका पूरा दामन भीग गया। मैंने देखा कि मतलब बयान करी, चश्माने अनवर से बहने वाले आंसू की वजह से दाढ़ी मुबारक तर तो हो ही गई, लेकिन हुजूर का दामन तो तर तो हुआ ही, ज़मीन भी तर हो गई। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना रो रहे हैं जबकि अल्लाह ने आपके सदक़े से आपके अगले और पिछले भी गुनाह माफ़ कर दिए हैं। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। वो उन्होंने फरमाया एक दिन अल्लाह के नबी रो रहे थे और हज़रत बिलाल हफ्सी ने कहा हो अल्लाह के नबी अब इतना ज़्यादा क्यों रोते हैं। तो फरमाए कि ए बिलाल मैं क्यों ना रोऊं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद फरमाए मैं क्यों ना आंसू बहाऊं। ये अल्लाह के नबी की आंखें थी जो हर वक्त बहती रहती थी गमे उम्मत में, ये आंखें हर वक्त बहती थी खौफ खुदा में, मतलब खौफ अल्लाह से खौफ में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के बारे में हज़रत अनस से मरवी आपको बताया, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का बताया ना हम आपको, क़ाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, ऐन के बारे में बताया, हुजूर की आंखें के बारे में बताई। उनकी आंखें दरिया थी और कसरत से अल्लाह के याद में वो रोते थे। उनकी आंखें अबहर भी थी, अस्कल भी थी, अजबिल थी, और ये आंखें अकहल भी थी, ठीक ना। और फिर जितना हया इन आँखों में था कायनात में किसी शख्स में इतना हया भी नहीं है, ना होगा। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असद हया, ठीक ना। इसका मैं तर्जुमा करती हूँ। एक कुंवारी लड़की पर्दे में सिमट के जितना हयादार होती है, अल्लाह के नबी इससे ज़्यादा हयादार थे, इससे ज़्यादा हयादार। ये वही आँखें हैं जब वो उठती है तो आवाज़ आती है कद नरा तकल्लु फिस समावा। इसका मैं तर्जुमा बताती हूँ, पूरा नहीं पढ़ा।
अल्लाह के नबी का मतलब बार बार आसमान की तरफ रुख फेरना और आपकी आंखों का उठना हम देख रहे हैं। अगर आपके दिल में मतलब तहज़ीब किबला का ख्याल है तो अल्लाह के नबी देर न कीजिए, अभी रुख फेर लीजिए, जिधर लिख रुख कर लीजिए उधर किबला हो जाएगा। तो या अल्लाह तो पहले नमाज तो पूरी हो ले, हमने नमाज का वक्त बदलना होता है। तो एक दिन पहले बताते हैं कि कल से नमाज ज़ुहर 2:00 पे पढ़ी जाएगी, उसी दिन पढ़े जाएंगे। तो लोग आएंगे तो हम आए 2 बजे के हिसाब से 15 मिनट और इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ किबला बदलना था, एक दिन पहले बता दिया जाता कि नहीं, अब कहें कि ना मैं मतलब अभी रुख फेर लो, मतलब बताए मैं नमाज बाद नहीं पूरी की, पहले मर्जी तेरी पूरी होगी। तो मतलब अल्लाह बोले उनको, या आंखें उठे तो अल्लाह पाक उनकी लाज रखते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो इन मुबारक आँखों से वो देखते थे कि जो आम लोग नहीं देख सकते थे। खुद इरशाद फरमाए कि काला हल तरौना किबलती आहुना विल्लाही। इसका तर्जुमा मैं पूरा नहीं पढ़ी हूँ। हज़रत हबूरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी कहते मैं आगे नहीं देखता हूँ, मैं पीछे भी देखता हूँ, अब मैं तुम्हारे रुकू भी नहीं देखता, तुम्हारे दिलों में पैदा होने वाली खुशी भी देखता हूँ। तभी तो इकबाल ने कहा, ऐ फरोगत सुलही चश्मे भी तू मासी तू, तेरे आँख तो सीने को छुपे हुए राज भी देखते हैं, तेरे से कोई हकीकत मतलब कोई पोशीदा भी नहीं है। तो हमारे आँख तो सिर्फ रोशनी देखती है, तो अंधेरे में नहीं देखती है, नहीं देख पाती है। अभी अंधेरा हुआ तो हम लोग देख लेंगे, नहीं देखेंगे, एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, सबके आँखों में रोशनी रहेगी लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। अगर अंधेरा हो जाएगा तो हम देखने के लिए रोशनी की मोहताज है। हमारी आंखें रोशनी में तो देख सकती है, अंधेरे में तो नहीं देख सकती। लेकिन अल्लाह के नबी की आंखें ऐसी थी। हज़रत अब्दुल्ला अब्बास कहते हैं, काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी की आंखें जुल्मत में भी ऐसे देखती जिस तरह अंधेरे में जिस तरह रोशनी में देखा करती थी। अल्लाह के नबी की आंखें रोशनी में जिस तरह देखती थी, मतलब जुल्मत में भी आंखें, अंधेरे में भी अल्लाह के नबी की आंखें ऐसे ही देखती थी, ठीक ना। तो हज़रत उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि अल्लाह के नबी के आंखों को जिक्र करते हुए एक दिलावेज़ कहानी सुनाते हैं, सुनिए और सुनिए इनका। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ठीक ना, सही बुखारी में रिवायत है कि तुम्हारा वादा रोज़े कौशर है, और मदीना शरीफ में बैठ के फरमा रहे कि मैं यहाँ से वहाँ अब देख रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। दूर और नज़दीक ये आँख देखती है। जो बादस वो वफ़ात होना है, जो बादस क़यामत मतलब उनको देखना है कि जन्नत में क्या होने वाला है, ये आँखें सब कुछ देख रही है। और अल्लाह के नबी फरमाए कि हज़रत सोबान रज़ी अल्लाहु अन्हा से मारूफ रिवायत है, काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ज़वरू। इसका मैं तर्जुमा बयान करती हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़मीन को समेट दिया है, मेरे लिए ज़मीन को समेट दी गई है, हत्ता कि मैंने मशरिक़ को भी देख लिया है और इसके मगरिब को भी देख लिया है। तो कायनात की कोई चीज़ अल्लाह के नबी से निगाहों से पोशीदा नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखें दूर और नज़दीक के देखने वाली थी, और कायनात की कोई हकीकत अल्लाह के नबी से छुपी हुई नहीं थी। तो इसीलिए सहाबा से फरमाए, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते। अल्लाहु अकबर। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश्त मुबारक हो, अल्लाह के नबी के कान मुबारक काम, वो हुस्न बेमिसाल था। अपने अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो कान अदा किए थे जो दूर से भी सुनते थे और नज़दीक से भी सुनते थे। और दूर नज़दीक से मतलब